तो लुइस है का मिरर वर्क बुक है। हाँ, ये बुक दिखा है। भी दो, दिखा, हाँ अच्छा हाँ। हाँ, ये बुक है हम्म, और ये बड़ी फैंटास्टिक बुक है। हम्म, इस बुक का नाम है लुई हे, हम्म, द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ यू कैन हील योर लाइफ, मिरर हम्म, वर्क, हम्म, 21 डेज टू हील योर लाइफ। हम्म, तो मैं इसका एक एक्सरसाइज नहीं, एक वृत्तांत है जो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा टच मुझे इंस्पायर किया, तो हम्म, वो मैं आपके साथ जरूर जरूर बांटना जरूर चाहता हूँ। जरूर। योर डे 9 मेडिटेशन, हम्म, लविंग द इनर चाइल्ड, हम्म, day 9 of the audio download. हम्म, Go back in time. See yourself as a little child of 5. Hold out your arms to this child and say, I am your future and I have come to love you. Embrace this child lovingly and then bring it with you to the present time. See the two of you standing at a mirror, looking at each other lovingly. And as you stand there, become aware that there are so many parts of you that are missing. Now, go back in time even further to the very moment you were born. You have just come down the birth canal. It may have been a difficult trip. You feel the cold air and see the bright lights, and someone may have smacked you. You have arrived. You are love that little tiny baby. Love that baby. Now move forward in time to the moment when you began to walk. You would stand up and fall down, stand up and fall down, and stand up and fall down. And then suddenly you were standing and you took a step and another step and you were walking. You were so proud of yourself. Love that little child. Love that child. Then move forward in time to your first day at school. You didn't want to leave your mother, but you did. You took your first steps over the threshold of your school. You were scared, but you did it. You were doing the very best you could. Love that child. Love that child. Then remember your life around the age of 10 and everything that was going on there. It may have been wonderful. It may have been difficult. You were doing the very best you could to survive and you made it. Love that child. Just love that child. Now go forward to the time you were entering puberty and remember all that was going on. It was exciting and scary and maybe more than you could handle, but you got through it. You did the best you could and you made it. So love that teenager. Love that teenager. Go to the time of your first job and how exciting it was to earn money. You wanted so badly to make a good impression, and there was so much to learn. But you did the best you could and you succeeded. Love that person. Just love that person. Remember the first time you were rejected in love and how much your heart hurt. You were sure no one would ever love you again. You were in such pain. You did the best you could and you made it. Love that person. Love that person. Then go to another milestone in your life. It might have been embarrassing or painful or wonderful. Whatever it was, you were doing the best you could at that time with the understanding, knowledge, and awareness that you had then. So love that person. Love that person. Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. See yourself standing in front of the mirror with all of yourselves and realize that you are looking at the richness and fullness of your life. Of course, there were difficult times and painful times and embarrassing times and times of confusion. And that's all right. That's all part of life. Love all of yourself. Now turn around and as you look ahead, see a person standing before you with arms outstretched, saying, I am your future and I have come to love you. Life is an endless opportunity to love yourself, past, present, and future.
Loving and accepting every part of yourself is healing. How can you possibly be whole or healed if you are rejecting any part of yourself? Healing is to make yourself whole again. Love yourself, every part of yourself, and be whole. All is well, and so it is. व्हाट इज कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बहुत खुश हो रहे हैं आप पढ़ पढ़ के? फिर आपने एक्सरसाइज की है? मुझे हाँ मतलब इसको पढ़ना ही एक्सरसाइज है. मतलब पढ़ रहा था तो एक्सरसाइज हो रही थी. पूरा बचपन, प्यूबर्टी, टीनेज सब रिवाइंड हो गई. बढ़िया. आपको कैसा वंडरफुल. लगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि लाइक एक्चुअली आई एम वेरी कंप्लीट विथ माय चाइल्डहुड. ऐसा मेरे को लगा, तो मेरे को लगा कि चाइल्डहुड में जाने का क्या है. हाँ, सिर्फ वो बर्थ कैनाल वाला चीज है. हाँ, वो थोड़ा सा मुझे उस वक्त जो शुरुआत का था कि मुझे लगा बर्थ कैनाल से, हाँ, क्योंकि वो डिफिकल्ट एक स्ट्रगल होता है दोनों मम्मी और बच्चे के लिए. दैट वाज द पार्ट कि मुझे लगा कि हाँ, दोनों मम्मी और बच्चे को लाइक लाइक सॉर्ट ऑफ एम्ब्रेस. दैट वाज माय तो थिंग. मैं अभी इसको दूसरी बार पढ़ा है. पहली बार पढ़ा था, मुझे अपना बचपन बड़ा प्यारा है. अच्छा, वो तो तो दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे. बड़े हंस रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो और एकदम. बड़ी शरारतें करी है मैंने बचपन से ही ना. हम्म. तो अभी मैं थोड़ा सुधर गया हूँ. अभी मैं अच्छा, अब से एक प्रोफेसर हूँ. प्रोफेसर. तो मुझे अपने शरारतों में थोड़ा लगाम लगाना होता है. तो कितने घंटे, मतलब आई थिंक ये मिरर वर्क के बारे में और कुछ तुम्हारा मतलब एक्सपीरियंस शेयरिंग, या तुम बुक पढ़ रहे हो तो कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग कुछ ऐसा मिरर वर्क में क्या इट इज वेरी इम्पोर्टेंट था? हाँ मेरा ये 21 डेज है. आज मेरा 9th डे है. तो हम्म. इसमें हर दिन एक चैप्टर है वो पढ़ना है, और हम्म. उसमें कुछ एफर्मेशंस हैं. हम्म. जैसे आज की एफर्मेशन है कि आई एम योर फ्यूचर हम्म. एंड आई हैव कम टू लव यू. आई एम सॉरी दैट आई हैवंट टॉक टू यू फॉर सो मेनी इयर्स. हम्म. आई वांट टू मेक अप दैट. तो ये मैं जितनी बार भी मिरर के सामने निकलता हूँ या मिरर के सामने नहीं भी निकलता हूँ, तो मुझे ये एफर्मेशंस पूरे दिन भर में बोलनी होती हैं. तो एक टाइम ऐसा आता है पूरे दिन में जब मैं बोर हो जाता हूँ. मतलब ना वो अफर्मेशन इसका मतलब मेरे अंदर सेटल हो गई है. हम्म. 24 घंटे अच्छा. लगते हैं उसको. फिर नई अफर्मेशन आती है. मतलब अगला दिन होता है तो मैं रात को ना पढ़ के सोता हूँ उसको. फिर अगले दिन सुबह उठते ही, बिकॉज उठते ही ना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है. कुछ नहीं करना, सुबह उठते मैं सबसे पहले मिरर के आगे ना बुक खोलता हूँ और वाली अफर्मेशन करता हूँ 2 3 4 बार, जो भी उस दिन की होती है. सो एवरी टाइम इट इज वन लेवल अप. इट इज गोइंग अप. लाइक सबसे पहली अफर्मेशन थी कि आई एम विलिंग टू चेंज, डे 1 की. फिर अभी है कि आई एम सॉरी. तो वो डिग्री उसकी बढ़ती जा रही है हर डे की अफर्मेशन. सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आई एम मोर वाइटल, मोर अलाइव. वंडरफुल, वंडरफुल. तो और इसमें हर एक चैप्टर में 4 5 पेज होते हैं. तो पूरा दिन में ना मैं आई कीप रिवाइजिंग. मतलब अच्छा. वो सेम चैप्टर को मैं हम्म. मतलब तो उसमें अलग अलग एक्सरसाइज लाइक जर्नल्स हैं, आप लिख सकते हो. तो मैं हम्म. पूरा दिन अपने फ्री टाइम में वो करता रहता हूँ. तो वो पूरा चैप्टर मेरा होता रहता है. एंड इट इज वेरी सटल. मतलब नथिंग आज, it is working at a subconscious level. So वंडरफुल. everyone should, and it is only I think 200 or 300 rupees book. Very effective mirror work. वंडरफुल, वंडरफुल. So Thank you both for sharing this book with us. मुझे क्या आप खरीदोगे इसको? नहीं, मैं तो खरीदूंगी नहीं. मैंने ना मिरर वर्क, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब हर चीज में मैं ये बोलती हूँ कि मैंने किया हुआ है, बट यस, ये मिरर वर्क मेरे को तब काम बहुत आ रहा है व्हाइल आई एम डीलिंग विद सर्टेन थिंग्स, की मतलब जैसे कोई कठिनाई है, और स्पेशली जैसे कि कुछ अभी आजकल मैं जैसे रिज्यूमे भेज रही हूँ, या जिस कभी रिजेक्शंस आ जाते हैं, तो उसको डील करने में कि मतलब अरे ये रिजेक्शन हो गया, टू गेट ऑफ दैट, उसमें मेरे को मिरर वर्क बहुत काम मतलब आता है. मैं उसको वैसे ही डेली लाइफ में या अपने लाइफ में यूज करती हूँ मिरर वर्क को, जस्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन कि व्हाट इज दिस रिजेक्शन एंड हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड. तो उसमें मैं काम करती
और जब मैंने शुरुआत में ये हाउ टू हील योर लाइफ इनकी पढ़ी थी, तो मिरर वर्क हम लोग हे हाउस मैंने कम से कम 12-15 साल सुना है। तो मिरर वर्क ऑलमोस्ट वीकली ही एक प्रोग्राम उनका लुइस हे का उस हे हाउस रेडियो पे होता था। और कोई उनके अलावा भी एक और लेडी थी वहां पर, डॉक्टर डॉक्टर क्रिश्चियन नॉर्थरुप। वो भी मिरर वर्क की बहुत बड़ी क्या बोले के सपोर्टर थी। और मैरियन विलियमसन, मेरियन, मिस मेरियन। तो तीन लोग, तीन फीमेल जो क्या बोलेंगे स्पीकर थी उस रेडियो पे, वो मिरर वर्क के बहुत सपोर्टर थी। और तो मैंने मतलब या आई हैव बीन डूइंग दिस इन वेरियस फॉर्म्स। और उनका ये लुइस है, जब आप मेंशन कर रहे हो तो उनका ये है कि सबसे पहले उसमें बोलना कि आई लव यू। वो वाला बहुत बड़ा एक ये इस बुक में मेंशन है कि नहीं उनका वो, लेकिन है हाउस रेडियो में उनका ये था कि आई लव यू, मिरर के सामने आई लव यू बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी सिर्फ ऐसे नहीं, मतलब एनर्जेटिक आई लव यू ऐसे नहीं, मतलब फुल लाइक एक्चुअली दैट यू लव दैट पर्सन। And if somebody is feeling depressed or like feeling sort of sad or lonely या कोई समस्या आ गई है, तो ये आई लव यू वाला जो चीज है वो बोलने से काफी या तो रोना आता है या एंगर आता है या कुछ, मतलब जो भी चीज है सप्रेस्ड वो बाहर आती है। एंड देन यू आर एबल टू फेस द मिरर। ऐसा कोई बहुत जल्दी से आप मिरर को फेस नहीं कर पाते। एंड देन वो रिलीज सा एक किस्म से हो जाता है। और मैंने ये अपने बॉडी में से रिलीज के लिए मिरर वर्क बहुत यूज किया है या करती हूँ। मिरर वर्क वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। थैंक यू फॉर दिस। मैं इसको कवर, ये जो आपने ऐसे पकड़ा है ना वो वाला, इसको वहां पर डाल के, और एक किस्म से बुक रिव्यू है ना ये आपका मिरर वर्क वाला। या थैंक यू, थैंक यू।